Yes, good afternoon to everyone. Welcome to the IP class. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Yes. So I hope that you all are well, and please take care of your health also. And yesterday we were focusing on the few programs based on the list. So yes, this is the program that we did yesterday. That is to find out the largest number in the list. So we have different mechanisms here. We have used the sort method. We can make use of a user-defined function also, and we can use the max also. Clear? So these are the different ways, and we can use the linear search also. Linear search to find the biggest element. Clear? Someone knows about the linear search, how the linear search works? Linear search is there to find a particular element, basically. Clear? So one by one, we basically, it's not basically to find out the biggest element. Linear search is there to search a element in the list. Clear? And after this, we worked on the one more program that was there to find the, I think, average. So we have not worked on this method average to find the average of whatever the numbers are present in the list. So again, this program here is based on the user defined function you have. Clear? So here what is happening here? This is the DEF is the keyword, average is the name of the method that we have created, and list is the parameter. Anjan. So your screen is not visible. Okay. So yes, now it is visible. Sir, it's still sharing. हाँ जी, शेयर हो रही है अभी तो. दिखाई दे रही है? नो सर. सर रुको मैं रीजन करता हूँ. मेरा इंटरनेट इशू. चेतन के नेटवर्क इशू है. अच्छा, बाकियों को दिखाई दे रही है? समरदीप. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the one more program that is to find out the mean of a list. So इसके अंदर भी ये user defined का concept use किया है. That is this is the average function is that has been created, and def is the keyword. That is how to define a function in Python, and this is the parameter of this very function is. And here two functions are used. One is sum method. Sum method is there to calculate the sum of the elements of the list divided by the length. So this is the method we have to find out the average. Clear? And then this is the program that we have. So let us work on this one. And, yes. So this is the Jupyter notebook, and so first we'll be creating a list. So let's say list is so these are the elements of the list we have.
and then we will call the average function and pass the list one as parameter. Okay, and let's try to have depth, and then in depth we have this is the list we create here, and just we have to mention one method in return only. That is, first we calculate the sum of the list and divide it by length of the list. Clear? And here we print the average. Fine. So this is the program we have. Just try to run this one. And no, this is the average that we are getting, 36 point like this. Clear? So the program starts from this. First we have what we have did in this step. That is, we have initialized the list, and then this is the average function that we have created. This is a which type of this function is? This is a user defined function. Clear? And this function passes this list. This list will be assigned to this list, and here in this list, first the sum will be calculated, and then it will be divided by the number of elements. We know that how we calculate the average. Average is calculated by basically adding up all the elements of the list and divided by the number of the elements that we have. So this value will be returned back to this function, and then it will be assigned to the variable avg, and here we have printed the average. So the same program अगर हमने इसको बिना फंक्शन के करना है, इफ यू हैव टू डू इट विदाउट द फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो इसको कैसे करेंगे? जैसे ये लिस्ट है मेरे पास. सो in my program I do not want to use the concept of user defined function. मैं इसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन का कंसेप्ट नहीं यूज कर सकता. सिंपल प्रोग्राम बनाना है विदाउट यूजिंग दी फंक्शन. तो कोई बता सकता है इस प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट में to find out the average? Yes, Krishna. प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम लिस्ट वन अपॉन लेन लिस्ट वन. यस यस, यही मेथड लगा देंगे मुझे सर. बस इसके पीछे प्रिंट लगा देना. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिस्ट वन. So this is the function with 3 lines of code. This is the program without using the function, average function. We have not used here the average function concept. Similarly, this program I can do it with the help of one more method, that is the mean method that we have.
list one. And this mean method is basically part of the numpy package का part. So I will use here, that is, this is, ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेथड किस पैकेज का पार्ट. Yes, so this is one more way that you can find out the average of the number of the elements of the list. How to find the average contained in the elements that we have in a list. Clear? So coming back to the slide, yes. So you can see here in the bottom part of the slide, it is mentioned that we have a inbuilt function mean can be used to calculate the mean, or the other name of the mean is average of the list. So you can see here, mean is the method and list is the elements of the list that will be for whom the average will be calculated directly by this mean method. So these are the different ways of doing this program. So whatever the method you find feasible, that you can use. Yes. So next we have a mechanism of the program. So that is for the linear search. We used this word earlier in our lecture also, linear search. तो कोई आप में से बता सकता है ये linear search काम कैसे करती है? How the linear search works? So I request Mr. Manjot Singh, Lovepreet, Simranjeet, Harsimrat, and Rahul. So 2 students are ready. Yes, Harshmeet. Harshmeet, ये कैमरा भी ऑन कर लो भाई. गुड आफ्टरनून सर. Yes, yes, good afternoon. सर लीनियर सर्च में हम कोई एलिमेंट सर्च करते हैं और हम पहले तो इसको सॉर्ट करेंगे, उसके बाद सर एक एलिमेंट को उठाकर उन सभी से कंपेयर करेंगे और जो भी हमें मिल गया, लाइक जो भी उसके साथ मैच कर गया, तो हम उसका इंडेक्स दे देंगे, जहाँ से हम ये कह देंगे कि हमें वो एलिमेंट सर्च हो चुका है और वो इस लिस्ट में ही होगा. Okay, very good. So let's, yes, Ramit. Now you discuss the mechanism of linear search. कैसे काम करती है linear search? तो वो हर एक एलिमेंट को बारी बारी चेक करेगी लिस्ट के कि मतलब ये इक्वल है कि नहीं है, और अगर एंड पे कोई भी इक्वल नहीं होगा, तो जैसे हमने लिस्ट 1 लिया है तो उसकी मतलब जो भी इंडेक्स अगर इक्वल हुआ, कोई सपोज अगर 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इक्वल हुई, जो हमने वैल्यू जो की है हमारी, तो सर वो वैल्यू प्रिंट करा देगा. अगर नहीं हुई तो वो फिर वो प्रिंट करा देगा जो भी हमने डाला होगा एल्स पार्ट में, कि अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल की प्रिंट करा देगा द नंबर इज नॉट इन द लिस्ट. Yes, it's very good. So basically how the linear search basically works, like the elements, जिस भी एलिमेंट को हमने सर्च करना है वो हम पहले कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, और जहां पे हमें एलिमेंट सर्च हो गया, so we will say that the element is found and we can say that it is found at this position in the list. और दूसरा हमारे पास केस हो सकता है, that is we are unable to find the element and the element is not present in the list. So this is what we have in a linear search. So this is an important algorithm, linear search. So here in this program we have a list of elements. These are the list of elements, and then we ask the user कि आप किस number को search करना चाहते हैं. The user will input the number, and by default in the initial we will keep जो found variable है उसको false रखेंगे. Clear? So we have initialized the found variable with false, that is it is not found till now. Then we started with the loop for I in range with the length of the this list. फिर हमने क्या किया कि जो हमारे पास एलिमेंट है उस एलिमेंट को हमने कंपेयर किया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, अगर तो वो इसके साथ मैच कर गया सो वी विल से फाउंड. फाउंड को हम ट्रू कर देंगे और उस नंबर को
और उसकी पोजीशन को, दोनों को हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। क्लियर। एंड ब्रेक करके, ब्रेक को यूज करके हम इससे बाहर आ जाएंगे, बिकॉज जब एलिमेंट सर्च हो गया तो हमें आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर ये वाली लूप नहीं चली, सो वी विल से दैट फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। क्लियर। एंड देन द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। सो नाउ दिस इज a see whether this works or not. So the program is directly copy pasted. So first we have a list of elements, then we ask the user to input the number that we want to search, then we initialize the variable. This is the for loop. Keep a space here, and here we have to use the indentation. And if the element is found, तो हमने उसकी पोजीशन भी बतानी है, और पोजीशन भी बतानी है, और साथ में ये भी बताना है कि इसको ब्रेक कर दो लूप को। एंड अगर ये एलिमेंट, इसमें एल्स पार्ट नहीं है, इसमें एल्स नहीं है, इसमें एल्स नहीं लगेगा। पहले तो ये सारी लूप चलेगी, फाइन फाइन। सो पहले तो ये सारी लूप चलेगी, और बाद में अगर तो ये सारी लूप चलने के बाद भी उसको नहीं मिला, तो फिर फाउंड इज इक्वल टू फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, और एंड इट विल प्रिंट दैट द एलिमेंट इज नॉट देयर इन द लिस्ट। क्लियर। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, एंड स्टिल वी हैव सम एरर हियर। तो लास्ट वाला प्रिंट, लास्ट वाला प्रिंट, हाँ, इंडेंटेशन नहीं है इसमें यूज किया, ये कॉपी पेस्ट से गड़बड़ होती है। सो लेट्स द एलिमेंट टू बी सर्च, 9 को सर्च करते हैं, 9 को, एंड यू सी द 9 इज फाउंड एट द 3rd पोजीशन। तो ये 9 कैसे चल रहा है, ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है। फर्स्ट द लिस्ट इज इनपुटेड। ये यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली, कि एक लिस्ट को हमने कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है जी, एक लिस्ट को हमने इनपुट कर दिया, यू कैन से इनिशियलाइज और इनपुट व्हाटएवर यू वांट टू से। बाद में हमने यूजर से इनपुट करवाया कि वो कौन से नंबर को सर्च करना चाहता है। फर्स्ट हमने एक वेरिएबल को ले लिया एज ए फॉल्स, फाउंड वेरिएबल को फॉल्स ले लिया, लूप चला दी, तो लूप चलेगी टिल दी व्हाटएवर द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज देयर। क्लियर। एंड जो लिस्ट में सबसे पहले क्या है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ये जो लिस्ट है इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग विद 0। तो 0 पे कौन सी, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 4। सो 4 विल बी कंपेयर्ड विद 9। 4 व्हेन 4 इज कंपेयर्ड विद 9 दिस बिकम्स फॉल्स। तो कंट्रोल यहां से सीधा का सीधा फिर से वापस चला जाएगा, इसके अंदर तो जाएगा नहीं, इफ के अंदर। ठीक है। और इस फार के अंदर बस ये इफ ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। द कंट्रोल विल गो बैक, और अब इसके अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज 2। सो दिस 2 विल बी एक्सेस्ड, 2 will be compared with 9, again false, then 8, and then 9. So this is how the loops basically works here. Clear. एक हम number test कर लेते हैं, that the number which is not present in the list. So let's say I enter here a value 10. तो कोई explain कर सकता है ये 10 is not in the list, ये कैसे चल रहा है प्रोग्राम? Someone can explain the working of this one. Linear search. As 2 students are ready, Samardeep is ready, Krishna is ready, and see who else is ready. 4 students. Anyone from the other than these 4 students? So, हाँ जी, चेतन की ड्यूटी लगाते हैं पहले। एस चेतन, आप करो एक्सप्लेन। सर जो कंट्रोल है वो मैं एक ही लाइन में बताऊंगा, जो कंट्रोल है वो लास्ट वाले लिस्ट के पास चला जाएगा, क्योंकि आपने जो वेरिएबल ऐड किया है वो हमें लिस्ट में नहीं दिया वो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मिस्टर चेतन हैज एक्सप्लेन्ड द समरी, और इसकी डिस्क्रिप्शन को कौन बताएगा? समरी इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई वांट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस आंसर। एनीवन? यस कृष्णा, यस यस समरदीप, आप बताओ।
सर जैसे उसने 10 कंपेयर करना है, x की वैल्यू उसने 10 ले ली है, तो उसके बाद वो लूप में जाएगा। i हमारे पास x यानी कि हमारे पास 10 था, तो इक्वल नहीं होगा, इसलिए वो नीचे वाली कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा और दोबारा ऊपर वाली लिस्ट में चला जाएगा, फिर से लूप एग्जीक्यूट करने लग पड़ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास 10 किसी में भी इक्वल नहीं आएगा, तो वो लास्ट वाली करेगा, इफ फाउंड इज नॉट इज इक्वल टू फॉल्स, फिर वो तो ये सारी प्रिंट कर देगा कि जो हमारे पास एलिमेंट था वो लिस्ट में नहीं था। ये सारी की सारी फॉर लूप में ना इट विल नेवर गो टू दिस प्रिंट वन, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट विद जहाँ पे ये वैल्यू दोनों की ट्रू होगी, तो ये इफ तो चलेगी नहीं इस केस में। एंड कंट्रोल विल गो टू द आउट ऑफ दिस फॉर लूप। आउट ऑफ दिस फॉर लूप व्हाट वी हैव, इफ कंडीशन, इफ में हमने बोला है फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, सो यस फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू तो फॉल्स ही रहेगी, फॉल्स की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, सॉरी फाउंड की वैल्यू, तो फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही है। सो देन इट विल से परसेंटेज डी is basically used for integer value. Percentage d is not in the list. So कौन सी लिस्ट है हमारे पास, परसेंटेज x, तो परसेंटेज d रिप्रेजेंट करेगा जो हमारे पास वैल्यू है x की। क्लियर? सो इट विल से दैट the 10 is not found in the list. ये जो नंबर है x is not found in the list. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये परसेंटेज डी और परसेंटेज एक्स ये यहाँ पर ही यूज होगा कि मतलब कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी मतलब ये डिफाइंड है? क्या क्या परसेंटेज डी एंड परसेंटेज परसेंटेज d अगर आप नहीं यूज करना चाहते, so you type it like this, so you say that we type it as x is not found in the list. अब x की वैल्यू कितनी है उसके लिए हमने ये यूज किया था ऐसा मैकेनिज्म, सो यू यूज, अगर आप इसके साथ फेमिलियर हो, सो यूज दिस मैकेनिज्म, x is not in the list and x, the value of x is 10, so you go with the previous method, clear, that we are using. आप यहाँ पे क्या किया हुआ था, परसेंटेज d is basically used for integer number, और इसकी मैचिंग इसके साथ करवाने के लिए नो दैट इज दिस परसेंटेज सिंबल इज यूज्ड, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो वहां पे क्या होगा, जहां पे ये परसेंटेज d है वहां पे वो रिप्लेस कर जाएगा इस वैल्यू के साथ, तो दिस वैल्यू विल रिप्लेस दिस परसेंटेज। सो वी हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, ये फॉर्मेटिंग का मैकेनिज्म है, हाउ वी हैव टू फॉर्मेट द वैल्यू। सो दिस वाज वन मोर प्रोग्राम बेस्ड ऑन द लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अलावा कोई और सर्च होती है हमारे पास? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, तो थोड़ा बताओ रमनीत इसके बारे में, बाइनरी सर्च के बारे में। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें पहले एलिमेंट, सारे जो लिस्ट के एलिमेंट्स उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है, फिर सर ऐसे बिगनिंग की वैल्यू लेके मिड की वैल्यू लेके उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर अगर वो ग्रेटर होती है तो सर फिर आगे जाना है, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, बट अगर फिर वैल्यू यस गुड। बेसिकली अगर हमने लिस्ट के ऊपर अगर हमने बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है तो क्या लेंगे, पहले हमारे लिस्ट पड़ी हुई है, लिस्ट को हम सॉर्ट करेंगे, और फिर सॉर्ट में सबसे पहले हमने सर्च करनी होती है मिडल वैल्यू। जैसे लेट से अगर ये मैकेनिज्म मैंने स्टडी करना है, जैसे ये मेरे पास लेट से ये बुक है, तो बुक में अगर मैंने कोई पेज नंबर सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इस बुक को हाफ कर लिया, फिर हाफ में मैं देखूंगा कि जो नंबर है दैट इज वो लेफ्ट साइड में आ रहा है या राइट साइड में आ रहा है, तो अगर लेट्स से इट इज कमिंग ऑन द राइट साइड तो मैं फिर नेक्स्ट पार्ट का हाफ करूंगा, और ऐसे मैं हाफ करता जाऊंगा। तो टिल हाफ के केस में 2 ही केस होंगे, या तो जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं दैट विल बी देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड या राइट साइड, तो ये लेफ्ट राइट वाला मैकेनिज्म हम यूज करते रहेंगे, एंड दैट्स अनदर वे ऑफ सर्चिंग द एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च। एक हमारे पास लीनियर सर्च होगी, बाइनरी सर्च होगी, एंड वी हैव ए ह्यूज नंबर ऑफ सर्चिंग मैकेनिज्म। इसके अलावा भी और सर्चिंग मैकेनिज्म है हमारे पास लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च के अलावा। सो ये 2 मेथड हमारे पास हैं फॉर सर्चिंग द एलिमेंट, क्लियर। रेस्ट वी विल सी और कौन सा मेथड है a bit later. Now let's move to the next program. So next we have
this program is there, that is to check the frequency of an element in the list. तो हमने एलिमेंट की क्या बतानी है इसमें, फ्रीक्वेंसी बतानी है. फ्रीक्वेंसी मींस द अकरेंस ऑफ ए नंबर. तो इसके लिए इसने एक पैकेज यूज किया हुआ है, कलेक्शन पैकेज. और कलेक्शन पैकेज का एक कलेक्शन इसने इस पैकेज को यूज करके एक काउंटर मेथड का यूज किया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन सिर्फ ये एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज दिस पैकेज इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है, हमारे सिलेबस में एक numpy पैकेज है. सो दिस पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट स्टिल इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं. दैट इज हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग. ठीक है, ये कंसेप्ट हम स्टैट में यूज करते हैं कि जैसे हमें डाटा सेट दिया हुआ है तो हमने उस डाटा सेट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. कि जैसे हमने चेक करना है कि इसमें 101 कितनी बार आ रहा है, 201 कितनी बार आ रहा है, लाइक दिस. सो दिस इज हाउ वी चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर. सबसे पहले जो इसमें समझने वाली बात है, इसने कलेक्शन पैकेज का यूज किया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट कलेक्शंस. एंड उसके बाद क्या है, ये कलेक्शन मेरा पैकेज है और काउंटर उसका मेथड है. तो ये सारा ये देखो ना, यू सी हियर द पाइथन लैंग्वेज इज वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज. इसमें देखो हमारी कोडिंग श्रिंक होकर कितनी हो गई है. अगर आपने यही प्रोग्राम C++ में करना है ना, या C में करना है, और मे बी इन जावा आल्सो, तो इस प्रोग्राम के लिए दैट यू हैव टू राइट ए बिगर कोड. ठीक है, ये काउंटिंग कैसे करनी है. सो दिस काउंटिंग इज डन फॉर अस बाय दिस काउंटर मेथड. ये काउंटर मेथड उसको काउंट कर करके कहाँ पे डाल रहा है, उसको माई लिस्ट में. और माई लिस्ट को मैंने यहाँ पे किसको, एक वेरिएबल को असाइन कर दिया, काउंटर वेरिएबल को. एंड दैट्स ऑल. तो एक बार इसको रन करते हैं. तो ये देखो ये कितनी वर्सेटाइल लैंग्वेज है. लिस्ट हमने इनपुट की, ये लिस्ट हमने इनपुट की यहाँ पे, और उसने उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया. ये देखो काउंटर मेथड ने हमें रिजल्ट दे दिया. ये एक डिक्शनरी बनती है जिसमें डिक्शनरी इज दी लिस्ट के बाद हमने नेक्स्ट जो है उसको पढ़ना है डिक्शनरी को. तो डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती हैं. दिस इज दी की, इसको हम की बोलते हैं और इसको हम वैल्यू बोलते हैं. तो 101 को उसने की बना दिया. 101 की अकरेंस है 4 और 201 की अकरेंस कितनी है, ये भी 1 2 4 बार आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे 201 को, यहाँ पे मैं अगर 201 को एक बार और लिख देता हूँ, एंड आई हैव 205 आल्सो. क्लियर, आई जस्ट रन दिस वन. तो ये देखो ऑटोमेटिकली 201 की अकरेंस 5 हो गई है, 104 की 4 ही है, एंड 205 की 1 हो गई है. सो ये सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है प्रोग्राम, बिकॉज द कलेक्शंस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस. हियर वी हैव यूज्ड द कलेक्शंस पैकेज. और कलेक्शन पैकेज में एक काउंटर मेथड है. काउंटर मेथड में हमने पैरामीटर सप्लाई कर दिया. जो हमारी लिस्ट थी वो हमने एज ए पैरामीटर पास कर दी इसको. तो इसने इसका जो भी रिजल्ट है वो कंट्रोल वेरिएबल को, CTR वेरिएबल को असाइन कर दिया, जो भी रिजल्ट है. और जब मैंने CTR को प्रिंट किया तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास. सो CTR सेज काउंटर इज इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से दिस इज द काउंटर. और उसके अंदर एक डिक्शनरी बना दी है, और डिक्शनरी के अंदर ये 201 कितनी बार आ रहा है, 101 कितनी बार आ रहा है, और 205. So I think now we are finished with the programs which are list. So that's all whatever we have in the list. Clear. So these were the program list with regard to the related with the list. Okay, now we can focus on the programs which are there in our syllabus. So this is the syllabus we have. Or syllabus में yesterday we have focused on the simple interest and the compound interest. The next program we have in the pipeline is to calculate the profit loss for a given cost and sell price. And let us say who understands this question, and with the help of this team, we have a huge team with us, with the help of which we will try to solve this question.
हाँ जी चेतनदीप। तो मैं बताऊं सेंटेंस उसका? हाँ हाँ, पहले समझा दो ये प्रॉब्लम क्या है, इतनी जल्दी क्या है प्रोग्राम को। फर्स्ट वी, जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है सो वी शुड फोकस ऑन दी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में पूछा क्या है हमसे। सो कोई आप में स्टूडेंट है हु इज एबल टू एलैबोरेट व्हाट हैज बीन आस्क्ड, पूछा क्या है हमसे। दिस इज तो मैं प्रोग्राम। बताऊं, हाँ बताओ बताओ। इस प्रोग्राम में हमारे पास दो वेरिएबल बेसिकली होंगे, दो वैल्यूज होंगी, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। उनके डिफरेंस से जो आंसर आएगा हमको बस ये बताना है कि वो प्रॉफिटेबल है हमारे लिए कि लॉस है, ये इसमें से निकालना है। वेरी गुड वेरी ये गुड। बेसिकली हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। अच्छा चलो ये बड़ी अच्छी बात बोली तुमने, रियल लाइफ में बताओ, बताओ कहाँ पे यूज करते हैं इसको। सर शॉप्स, मॉल्स, हाँ जहाँ भी एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज का काम होगा वहां पे ये यूज होगा। अच्छा अच्छा, मनी 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 एक्सचेंज यू मीन, मनी एक्सचेंज क्या होती है। लाइक व्हेन यू गो टू अ मॉल एंड बाय समथिंग हाँ हाँ एंड मॉल का अपना कॉस्ट प्राइस पूछा है, उन्होंने किसी प्राइस पे लेके आए, आपको किसी प्राइस पे दे दिया, फिर उन्होंने हाँ, उसका डिफरेंस करके निकाला हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यस वेरी गुड यस। हर्षमीत, हर्षमीत वांट्स से, यार हर्षमीत कैमरा ऑन कर लो भाई, कैमरा क्यों बंद कर देते हो बाद में आप, और सिर्फ ही अपना यस हाँ ऐसे बताया करो। सर वो थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए। हाँ हाँ सर और जैसे हमारा कई बार लाइक हम दुकान पर जाते हैं, हाँ हाँ लाइक लाइक रजिस्टर हमारा खत्म हो गया, रजिस्टर लाइक ज्यादा कर लिया थोड़ा सा, हम्म, तो हम दुकान पर जाते हैं तो वो हमें लाइक रजिस्टर देता है, लाइक वो अगर लॉस में थोड़ा देगा, लाइक वो जिसमें हमारा वो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, अच्छा अच्छा तो वो उसको प्रॉफिट ही होगा। अगर हाँ लाइक हम जितना उसने हमको बेचा है और जितना उसने दिया है, लाइक कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर लेस देन सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली उसका लॉस ही होगा सर। हम्म। तो व्हाट यू वांट टू से कि दुकानदार को हमेशा प्रॉफिट ही होता है, तो लॉस हम बाहर निकाल दें। सर लॉस तो फिर दुकानदार के हाथ में है ना। नहीं नहीं, दुकानदार के हाथ में नहीं होता, दैट्स यू आर नॉट डिस्कसिंग इन द राइट ट्रैक। आप कभी मार्केट में चले जाओ, यू नो दी, जो सेल जो जो बेसिकली आप शॉपकीपर की बात करते हो ना, देयर आर शॉपकीपर्स इन दी मार्केट जो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस से नीचे भी सेल करते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप इसकी, वेयर इज द सिनेरियो सर मैं बताऊं, वेयर जहां पे आपने आपने महंगे रेट पे बाई किया लेकिन यू आर सेलिंग एट ए लोअर प्राइस। सर हाँ यस। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज बाय की और हम्म वो एक्सपायर हो गई है, तो हम्म उसका मतलब हम उसको आम बेच भी नहीं सकते, तो हम किसी को सस्ते प्राइस में दे देंगे, हमारा लॉस होगा पर निकल जाएगी। अच्छा अच्छा, मरवाओगे किसी को ये तो एक्सपायर चीजें बेच के। सर हाँ आपने एग्जांपल सर मांगी, सेकंड एग्जांपल दे ये दीजिए। तो नहीं नहीं, ये यार एग्जांपल अच्छी अच्छी एग्जांपल देनी है, किसी को ये तो मारना थोड़ी है, एक्सचेंज होगी एक्सपायर्ड ना। दवाइयां खिलवा सर लोगे। सेकंड हैंड सर कार। मार्केट में होता है ऐसे। और मार्केट में तो बहुत कुछ होता है, हमने सारी मार्केट थोड़ी डिस्कस करनी है यहाँ पे। वी हैव टू डिस्कस द लीगल थिंग्स हियर इन द क्लास। ठीक है, जैसे सेकंड आपने हैंड कार। जैसे जैसे इसने वर्ड यूज किया था मनी एक्सचेंज, मेरे को लग रहा था ये किसी गैंगस्टर की बात करेगा, ये मनी एक्सचेंज वहां पे करते हैं। या तो तो ये वहाँ पे हाँ चलो ठीक है। यस मेरा आई हैव आस्क्ड ए वेरी गुड क्वेश्चन। आप कोई मेरे को बताओ कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में गिव मी द वन प्रैक्टिकल एग्जांपल वेयर द शॉपकीपर सेल्स द गुड्स लोअर देन द कॉस्ट प्राइस एंड इट हैपेंस इन ए सिंगल डे। एक ही दिन के अंदर वो एक्टिविटी करता है ये सारी। यस हर्षमीत वांट्स टू से समथिंग। सर जब सेल लगी होती है, हाँ सर जब सेल लगी होती है, जब जब सेल लगी सेल होती लगी है, होती है। दैट इज सेल इज सिनेरियो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये चेतन की एग्जांपल के साथ मैच करेगी। यू नो जैसे सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। जैसे ये वेजिटेबल वाले हैं, जो वेजिटेबल सेलर्स, फ्रूट सेलर्स। तो जैसे लेट से कि इन्होंने 100 रुपीज पे मैंगो शुरू, दे हैव बॉट ए मैंगो एट 100 रुपीज, ठीक है। तो अगर तो इनका सारा सामान जो है वो 120 रुपए में सेल हो गया, इट्स फाइन। बट इन द इवनिंग यू गो टू देम, उनको लगता है कि यार ये अगर मैंने अपनी क्वांटिटी जो है वो 70% या 80% सेल कर दी है 120 पे, मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब जो बचा है व्हाट आई हैव टू डिसीजन, आई हैव टू टेक। और वो 2-4 दिन बाद वो खराब भी तो हो जाएंगे, ये मैंगो को 50 दिन थोड़ी चलेंगे। वेजिटेबल डजंट गो फॉर नंबर ऑफ डेज। व्हाट दे डू, जो उनके पास रिमेनिंग आइटम बचती हैं, दे सेल देम एट ए लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। अल्टीमेटली दे गो होम विद द प्रॉफिट ऑन। तो दिस इज नॉट द केस, दैट इज द सिनेरियो वी आर डिस्कसिंग।
लॉस के ऊपर भी चीजें सेल होती हैं. दिस इज नॉट ए बेसिकली इनविजिबल सिनेरियो. Every time the shopkeeper doesn't earn the profit, sometimes he goes with the loss also. Clear? Now let us focus on the program. Don't focus too much on the other scenarios. Yes. तो इस प्रोग्राम में मेरे को कोई बताएगा कि इनपुट क्या करना है. What I need to input here? हाँ चेतन आप ही बताओ. तो बेसिकली हमारी दो अमाउंट्स होगी, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेल प्राइस. कॉस्ट जिस पे हम लेके आए हैं, सेल हमने कितने में बेचा है. So let's say input the enter the cost price, and then we have Sell. yes, we'll just copy paste this one. And we'll say this is the आंसर रिजल्ट आएगा हमारा. इसका रिजल्ट वाला वेरिएबल हम लिखेंगे कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे. ठीक है. तो अब हमने दो चीजों की कैलकुलेशन करनी है. वी नीड टू कैलकुलेट टू थिंग्स. वन इज वी कैन हैव ए सिनेरियो वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, and we will be ultimately will be having a profit scenario. So in the if condition, we go with the if condition, if else. So if we say the cost is greater than the selling price, so no, definitely we have gone into the loss scenario. So we'll print the loss is, कैलकुलेट भी कर लेते हैं. लॉस कितना होगा हमें. the loss will be in this case cost minus the selling price. And in the other scenario, we'll just copy paste this one, and we will say the profit is just wait. So we'll say that is sell minus cost. Yes, Krishna. सर एक कॉस्ट सिनेरियो हो सकता है, कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. हाँ हाँ वो भी हो सकता है. we can take that scenario also. So उस सिनेरियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल्स को भी नीचे ले जाते हैं like this one. और यहाँ पे हम इससे पहले क्या लगा देते हैं, इससे पहले हम if else लगा देते हैं. else if you say cost सर else if के स्पेलिंग. हाँ हाँ कोई this. So इसमें प्रिंट ऐसे डाल देते हैं because we'll just give a message here, no profit and no loss is the scenario. So let's work on this. We have a, let's take it as 100 and let's say 95 is the sell price, so loss is 5. And the other scenario is that is we have a cost price is 100 and sell price is 105 and we have a profit. And if the both the value matches 101 and 101, so we have no profit anymore. So we have calculated all the different combinations. Either we can have profit, loss, or we can have no profit and no loss. And let's see the next program is there to calculate the EMI. To calculate the EMI for the amount, period, and interest. So 3 things are given to us in this program. Okay. What are these 3 things are? We have to calculate the EMI. Amount is given, that whatever the amount we have taken as a loan
for what period of time we have taken the loan and at which rate of interest we have taken the loan, and we have to calculate what will be the EMI cost. So what is the full form of EMI? EMI stands for, होती क्या ये EMI? Yes, Samanpreet, sorry, Samanpreet. Sir, EMI stands for equated monthly installments. Yes, क्या चीज होती है ये EMI? क्या होती है इक्वेटेड? सर जैसे अगर हाँ मान लो मैंने कार ली है, मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, मैंने उसकी किस्तें बनवा ली, तो ऑब्वियसली मुझे हर महीने उसके थोड़े थोड़े करके पैसे देने पड़ेंगे। सर जो वो इक्वेट करके देते हैं कि आप इस महीने चलो 50,000 दे देना, तो हर महीने मुझे 50,000 देने पड़ेंगे जब तक वो जितनी कार की प्राइस है वो पूरी नहीं हो जाती, और सर इस पे इंटरेस्ट लगता है। Yes, very good. So this is the way EMI means that like the example Samanpreet has taken up, that we have bought a car, and in that scenario, let's say I have paid some initial amount, and the rest of the amount I will pay as a loan, and now then the bank or from wherever I have taken the loan, from a financial institution or from any company I have taken the loan, so I need to pay the certain interest to them. So first of all, we will negotiate that whatever the rate of interest will be there, 10%, 11%, 12%. So that amount I have to pay now, the principal amount plus the rate of interest I have to pay. Clear? And this is how my monthly EMI will be decided. That is you said that it is full form is equated, or what is? Sir, equated monthly installment. Yes, equated monthly installment. So this is how my monthly installment will be made, depending upon that what is the rate of interest is. And another very important parameter is how much time period I am taking, whether I want to pay in a 2 years, 3 years. As the time period will increase, the EMI cost, monthly cost will increase हो जाएगी या decrease हो जाएगी? If the time increases. सर अगर ज्यादा टाइम लिया है तो थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े करके देंगे। अगर थोड़े पैसे तो उतने ही देने हैं, लेकिन मंथली इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। मंथली इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। और एंड इन दिस सिनेरियो हमारा कोई नुकसान होता है इस सिनेरियो में? अगर मैं सर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है फिर। तो क्या हो जाता है? मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। When I take more time, the interest cost increases. So this is the basic idea about the EMI. So this program we will do on the Monday. Rest आपका कोई question है related to whatever we have covered in the class? And also with regard to the attendance, grade 12A, we have Ramneet. Anyone else from grade 12A? Simran? Yes. 12B, Samanpreet and Parul. Anyone else from A and B? No. So from B, Simranjit Kaur. Simranjit, okay. Sir, Rahul. Rahul from B. Camera on rakha karo beta. Next is from C, we have Krishna, Jasmeet, we have Chetan and Lovepreet. Then we have Manjot Singh. Then we have Simrandeep. Yes, Samardeep. And that's all, I think so. Sir, I'm from B. Haji? Abhay Singh from B. Abhay Singh, okay. Yes. Harshmeet Singh from C. Yes. कोई query है बेटा आपकी? Any question you have? हाँ जी। सर numpy वाला जो आपने कराया था उसका सिंटैक्स बता दो एक बार। क्या numpy का क्या करवा दिया मैं?
जो लिस्टिंग में आपने नंबर का फीचर हाँ, यूज किया था वो जो मीन वाला, मीन के सिंटैक्स बताना। मीन के लिए हमने यूज किया था फॉर कैलकुलेटिंग द मीन वी हैव यूज्ड दिस numpy इज द पैकेज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंपोर्ट numpy एज np, एंड आप इस कोड को छोटा करने के लिए यहाँ पे आप np वर्ड यूज कर सकते हैं, np फॉर numpy is there in our syllabus, so that will come a bit later। ठीक है, इसके ऊपर बाद में फोकस कर लेंगे, नीड नॉट टू वरी, द numpy will come as a package in the, अभी हम फर्स्ट यूनिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसके बाद वाले यूनिट में numpy आ जाए। ठीक है, so thank you very much for joining the session, now we will meet on Monday। thanks beta, thanks everyone। हरमिंदर सिंह, your attendance is done। हरमिंदर सिंह, कौन सा सेक्शन है आपका? हरमिंदर सिंह, ओके ओके बेटा, थैंक्स एवरीवन।